Last time there was some technical glitch, so I just need to be sure. Okay, thank you, Sanjay. And welcome, Sanjay. Okay, so hello, everyone. Just drop in your highs and you can let me know from where you're joining in. I'm right now joining in from Gurgaon. And by the time we have 4 more minutes, please feel free to write your expectations of this session. When you read the title, what are you expecting? That what are we going to talk about, or do you want me to talk about something? Then please write it here, and I will take that into account and get those topics covered. Hi Adarsh, hi Arav, hi Harshal. Hello, hope you're doing well. Hi Barun, hello. Okay, so we still have 3 minutes. We'll start by then. But as I was saying before, hi Charan, that you can drop in your expectations. Hi Jayesh, of what you are thinking. If you have any questions, what you're thinking around by seeing the topic, we'll be starting soon. It's going to be very. I'm quite excited about talking about it because we are going to discuss a few things which you might have not heard, and that can give you some perspective around managing a lot of things in your life and just not managing people. So, yeah, we have still 2 more minutes. I'm joining in from Gurgaon. Hello to everyone. Anyone joining for the second time, or anyone who's a repeat uh, watcher of these streams, they can say hello. Okay, we'll start in another 1 minute. Anybody has any questions, please do put in. In the meantime, I'll just prepare one thing. Okay, Jayesh, so welcome for the first time, and I hope you like the stream and then you'll join the future streams that are going to come. Um, and just for everyone, I'm Bhuvnesh. I belong from Jaipur. I'm working in Gurgaon. I'm a yoga and a mindfulness teacher, and I have 8 years of experience in business development and startup world. I have started my own company and ran it and then sold it in 2019. I've been working with a lot of startups during this time. And in my journey, 3 years back, I realized that there is something more that I want to add to the work that I do. And that was something that got me into diving into our Indian philosophy and into our yogic systems, and I have read them in depth. I've read a few of the scriptures. I've read Gita. I've read Yoga Sutras of Patanjali and a few other scriptures. I've read a lot of books. I've done 200-hour yoga teacher training, and I for last 1 year I've been working with a digital well-being firm where I work with working professionals to improve their mental well-being, and we talk about what can be the tricks and tips and techniques on how they can improve their not only their mental health, how can they relax, how can they lower their stress, and how can they achieve their peak potential. We all feel that we have some potential but it is not realized. So I with my company help people to realize their peak potential. And so yeah, so this was about me. uh, we'll start. I think it's good time to start now. Jayesh is saying, what are the thoughts we should have while we meditate?
Okay, so Jayesh, let me start. I'll take your question, and in fact, we will cover this what you have asked. If I forget to, then you can ask this again. But question taking. So let's start with today's topic. Today's topic is becoming better managers and secrets from yogic science. Okay, so when we hear the word manager, mostly we attribute this to the while we attribute this to majorly to our profession or to the kind of work that we will be doing, let's say in future. If you are students, if the people joining here are students, तो जब हम फ्यूचर में सोचते हैं कि जब मैं काम कर रहा हूँ तब मैं मैनेजर बनूंगा, या फिर लेट्स से मैं भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हूँ और जब मेरा प्रमोशन होगा तब मैं मैनेजर बनूंगा, तब शायद कैसे बेटर मैनेजर होना चाहिए, दैट आई शुड नो. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हमारे मोस्टली जो हमारे मदर्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, हु डू नॉट डू जॉब आउटसाइड होम, if you will see, they are beautiful managers. Like they are so good managers जहाँ से उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है हमें. For example, what I'm trying to say here is, अगर आप देखोगे कि the way they stack their kitchens, the way they manage the nuisance of the kids that are there in the house, the way they manage the whole house, and all the timetable and all the timings, they are terrific managers. So when we are talking about managers, अगर manage भी देखें तो if you look at the word manage out of any other context of profession, तो मैनेजमेंट तो हर जगह है. Whether you're managing your time, you're managing your energy, you're managing your you're managing your own discipline, you're managing your habits. तो इस तरीके से देर आर मैनेजर या मैनेजमेंट को वी शुड नॉट जस्ट क्लब इट. ऐसा होता है कि तोते को जो है उस पिंजरे में नहीं डालेंगे हम कि. बट आज हम बात जरूर करने वाले हैं, प्रोफेशन के बारे में ही मेनली बात करेंगे. बट आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस क्लियर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट बिकमिंग बेटर मैनेजर्स, it will start from our own self, that becoming better managers of the self, of our own body, of our own mind. Then only we can manage a lot of other tasks or a lot of other people that will be an our team. इसी वजह से मैनेजमेंट के जो आज हम दो एरियाज कवर करेंगे, दैट टू एरियाज दैट विल बी कवरिंग. सो वन इज सेल्फ मैनेजमेंट एंड द अदर वन इज टीम मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. पहले हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट में, व्हाट आर दोज थिंग्स that will make us better managers, what are some things that we need to take care of, what are some techniques that we can adopt, what are the perspective that we can adopt for a manager. सिर्फ ज्ञान नहीं, प्रैक्टिसेस क्या होंगी जो हम रेगुलरली करेंगे जिससे हम हमारा सेल्फ मैनेजमेंट भी सही करेंगे और बाद में हमारा जो टीम मैनेजमेंट है, पीपल मैनेजमेंट है, टास्क मैनेजमेंट है, उसको सही करेंगे. ओके, दीज आर द टू थिंग्स वील बी टॉकिंग अबाउट. और सिनेरियो रहेगा, वी विल यूज द लेयर ऑफ योगा हेयर. कि योगा कैसे हेल्प करेगा इसमें. योगा का मतलब तो आसन करना, प्राणायाम करना, यही तो है, या मेडिटेट करना. योगा का मैनेजर से क्या रिलेशन है, we'll try to find that out. Now before we start, I want you and I want everyone here who has joined कि मज़ा तभी आएगा जब पार्टिसिपेट करोगे. तो थोड़ा पार्टिसिपेशन रखते हैं. we'll also be doing some live practices once we have covered the theory of what we are going to talk about today. We'll be doing so. अगर इंटरेक्ट करेंगे और अगर थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे तो इट वुड बी बेटर, because this is the session that is for you that we are doing. Okay, so when you hear the word good manager या better manager, what are a few characteristics that you can imagine कि यार अच्छा, एक अच्छा मैनेजर या गुड मैनेजर ऐसा होता होगा. So can people write in here, Jayesh, Charan, Barun, Harshal, Arav, Adarsh, Sanjay, anyone, can few people write here कि जब हम गुड मैनेजर्स के बारे में बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, ये क्या थॉट आता है दिमाग में कि गुड मैनेजर की ये कैरेक्टरिस्टिक होती होगी. अगर मैंने ये देख लिया है तो आई वुड बी एबल टू से कि हाँ, ये गुड मैनेजर है. एंड दैट कैन बी इन अ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट और दैट कैन बी इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट. एनीवन? देखो, पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा, अदरवाइज तो देन इट्स ऑल ज्ञान. तो ज्ञान तो फिर
एनीवे होना ही है. चलो, आई विल राइट समथिंग. I had written a few things. Let me write this. For a good manager, I think. आई थिंक मेरे लिए एक अच्छा गुड जो गुड मैनेजर होगा उसका टाइम मैनेजमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक होगी कि वो अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज करता होगा. एनीथिंग एल्स इफ people want to write. Jayesh, you asked a question. How about you also respond to this query? Ki what would mean a good manager? Come on, guys. No, nobody wants to write, or nobody can imagine a good characteristic of a manager. ऐसा है. ओह, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. आई थिंक लेट्स आई होप दैट यू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट सेट ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट वील हैव. बट लेट्स मूव फॉरवर्ड. कुछ अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक गुड मैनेजर की होंगी, वो एक अच्छा वो टाइम मैनेज करता होगा. दैट्स वन. व्हाट कैन बी एल्स, मैंने और कुछ लिखी थी. वो एक अच्छा लिसनर होगा. वो काम एंड कंपोज्ड होगा. that you can approach that manager, you can approach that person. उसके अंदर एक empathy होगी. Someone who manages people well, very well. Yes, and how, Harshal, very right. And how do you manage people very well? कि आप, एक है कि आपने लेट्स से अपनी टीम को कुछ काम दिए हुए हैं. कोई एक मैनेजर है, लेट्स से मैं मैनेजर हूँ, मैंने अपनी टीम को काम दिए हुए हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जस्ट द टास्क. ये हुआ कि नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये वाला टास्क अगर नहीं हुआ, लाइक आई ड्रिल डाउन ऑन टू द फैक्ट एंड आई डू नॉट हैव एनी अदर लेयर ऑफ capability of listening to the reasons that might have not worked out or what challenges that person might be facing. Now, to be able to manage a person well, you need to be self aware about a lot of things about human interactions. और ये जो अवेयरनेस है जो कि एक दो रिलेशनशिप्स की आती है, इसलिए मैंने कहा कि मैनेजमेंट की दो बातें हैं जो हम करने वाले हैं. एक सेल्फ मैनेजमेंट और दूसरी क्या है, पीपल मैनेजमेंट. तो एक अच्छे मैनेजर की जो निशानी है वो ये है कि वो अपने टीम मेंबर्स को अपलिफ्ट करेगा. उसे उसे हम लीडर भी बोल देते हैं, राइट? कि एक अच्छा मैनेजर इज अ गुड लीडर. एंड अ बैड मैनेजर और एक गुड लीडर, या लीडर और बैड मैनेजर में यही फर्क है कि वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती. और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो आपको मेंटोर करेगा, बट वो आपको माइक्रो मैनेज शायद नहीं करेगा. कि आपके हर चीज को लेकर के ही वुड नॉट लाइक टू वांट टू टेक दैट क्रेडिट, इसको इस तरह करो, इस तरह करो. एंड वो चाहेगा कि आप अपलिफ्ट हो, आप अपने आगे जीवन में आगे बढ़ो, अपने काम में आगे बढ़ो, राइट? सो दीज आर अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक जब हम कोई अच्छे मैनेजर के बारे में सोचते हैं. और हम हमारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में चाहते भी हैं कि हमें कोई इस टाइप का मैनेजर मिले. यार, हमें खुद ही अगर ऑफिस की पॉलिटिक्स में लड़ भिड़ के आगे बढ़ के कुछ ना कुछ किसी के साथ लाइजन बनाने हैं, किसी के साथ कुछ करना है, और कहीं ना कहीं एक मन मुटाव चल रहा है, तो उससे डेवलपमेंट नहीं होगा. शायद प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जाए, बट जो इंटेलेक्चुअल और जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जो इमोशनल क्वेश्चन है, वो डेवलप नहीं होगा. सो दैट इज समथिंग विच, टू बिकम अ बेटर मैनेजर, वी नीड टू आइडेंटिफाई. these आर द फ्यू थिंग्स. तो ये तो बता दी मैंने. ये तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी बात कर ली. तो इस सेशन को तो हम वैसे भी एंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी हैं. कि अच्छा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजर होना चाहिए, टास्क मैनेजर अच्छा होना चाहिए खुद, वो गुड लिसनर होना चाहिए, काम एंड कंपोज्ड होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, लोगों को अपलिफ्ट करना चाहिए, और मेंटोर होना चाहिए. तो इट्स डन. यही होना चाहिए. यू कैन बिकम बेटर मैनेजर्स इफ यू बिकम दैट. But it is not easy or not as straightforward as said. तो ये तो बन जाने के लिए, तो ये अच्छा इंसान बनने के लिए, एक बहुत सक्सेसफुल बनने के लिए, देयर इज अ लिस्ट ऑफ
पूरे इंटरनेट पे जाओगे लिस्ट ही मिल जाएगी, सक्सेसफुल बनना है तो कैसे, पैसा वाला बनना है तो कैसे बनना है, मुझे मुझे यू नो लेट्स से इस टाइप की फील्ड में इतना आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना होगा जो पढ़ूंगा। सो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हैं। सो नाउ वी कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये सारी चीज़ें तो हैं ही, what does yoga brings in to the picture, and what can we learn from yoga, what can we learn in our daily life। हम हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी क्या कुछ चीज़ें डाल सकते हैं जो नेचुरली, ये जो चीज़ें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बात की हैं, इन पर हमें कॉन्शियसली या फोर्सफुली काम नहीं करना पड़ेगा, दीज विल डेवलप by their own। Of course, you will have to be mindful about how you are acting, how you are treating people, how you are talking to other people, how you are talking, how you are treating yourself। वो तो है ही फैक्ट। बट कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, जिन प्रैक्टिसेस को करने के बाद आपके धीरे धीरे एक लेवल ऑफ जो कॉन्शियसनेस है अबाउट लेट्स कॉल इट फॉर नाउ सेल्फ अवेयरनेस जो है अबाउट योर ओन नेचर, awareness about your own behavior, awareness about your own likes and dislikes, जब ये develop होगी then you will be able to understand yourself and also the relationship that you have with other people there। So Arav is saying what are the practice that we should do to attain those qualities। That is exactly what we are going to talk about, Arav, right now। Okay, अब हम बात करते हैं, and I've written this so I'll just take the note from it। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं तीन चीज़ों के बारे में, प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। ये वो तीन चीज़ें, अगर आप इनको तीन को डिफरेंटली भी ना बोलो, एक साथ भी बोल दो, तो दीज काइंड ऑफ मीन्स वन ऑफ द सेम थिंग, वन इज प्रोडक्ट ऑफ द अदर। बट अगर हम इनको तीन डिफरेंट तरीके से बोलें तो सेल्फ अवेयरनेस फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है, कॉन्सेंट्रेशन की जो स्किल है वो होना ज़रूरी है, एंड कॉन्टेम्पलेशन अपनी लाइफ में वो होना ज़रूरी है, उसे मैं मेडिटेशन बोल रहा हूँ फॉर नाउ। ओके, कूल। तो अब सेल्फ, ये तो तीन चीज़ें थी। अब अगर मुझे एक अच्छा मैनेजर बनना है तो मेरे पास तीन से चार चीज़ें जो मुझे, मैं आपको अभी क्विकली बता देता हूँ, जो तो हम कर ही सकते हैं। आरव, दीज आर दी प्रैक्टिसेस दैट यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन, दैट वी विल हैव टू डू। वन ऑफ द प्रैक्टिस इज टू लर्न द आर्ट ऑफ फोकस। इस पर ही आज हम योगिक साइंस इसी के ऊपर लगाने वाले हैं। सो आई जस्ट टेक इट इन अ बिट। फर्स्ट इज टू लर्न द आर्ट ऑफ फोकस, कि अपने माइंड को फोकस कैसे कर सकते हैं, फ्लो कैसे जनरेट कर सकते हैं कि मैं जैसे ही किसी काम पर बैठूं मैं उस काम को कर पाऊं। तो दैट इज टू लर्न दैट आर्ट ऑफ फोकस। तो फिर वो आ रहा है, अभी हम सेल्फ मैनेजमेंट कैटेगरी में बात कर रहे हैं, पीपल मैनेजमेंट पर लेटर आएंगे। ओके, तो लर्न द आर्ट ऑफ फोकस, वन। सेकेंड इज लर्न कॉन्टेम्पलेशन, to be able to contemplate on your own। लेट्स से आज आपका दिन जिस तरीके से गया, आपने अपना दिन किस तरीके से बिताया, व्हाट आर दी हिट्स एंड मिसेस ऑफ द डे, क्या अच्छा गया क्या बुरा गया, कहाँ पर आपने गलत रिस्पॉन्ड किया, कहाँ पर आपने इस चीज़ की विच यू डू नॉट अप्रिशिएट एंड यू डिड इट इन दी हीट ऑफ द मोमेंट। तो दैट कॉन्टेम्पलेशन एंड इवन अबाउट गुड थिंग्स, कि आज अच्छा क्या हुआ मेरी लाइफ में, who were the people who did good to me, who were the people I did good to। So when you do that contemplation, there is some difference that it makes। Again, we'll talk about that from the perspective of yogic science। थर्ड इज फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप, यू कांट बी अ बेटर मैनेजर ऑफ योर सेल्फ और ऑफ एनी वन एल्स इफ यू आर फॉलोइंग अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। आप लेजीली पड़े रहते हो बेड पर, या जब काम चालू भी करते हो तो you have a lethargic attitude towards work, या आपकी लाइफ में सिर्फ वर्क है and you do not take care of other needs of the body, whether that is to exercise or whether that is to stretch or whether that is to walk or whether that is to meditate or whether that is to just take some time alone। तो जब तक अपनी फिजिकल और अपनी मेंटल वेलबींग पर काम नहीं करोगे, यू कांट बी अ बेटर मैनेजर, बिकॉज इसके डिसरप्शन से, फिजिकल और मेंटल वेलबींग के डिसरप्शन से जो चीज़ें अराइज होंगी, हियर मी आउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से,
फिजिकल और मेंटल वेलबींग जब नहीं होगी, जब ये डिसरप्टेड होंगी, तो इससे जो चीज़ें अराउंड अराइज होंगी वो आप अपने मैनेजमेंट की शैली में लेके आओगे, अपने मैनेजमेंट के तरीके में लेके आओगे. सो यू, इफ यू आर इरिटेटेड और इफ यू आर नॉट calm in your mind, that would reflect in your relationship with your employees, with your team. That would happen. So this, that's why it's very important. तो मैं तीन चीजें लिखता हूँ अभी, so that everybody can take a note of it. Three things to. When I'm saying learning, this is practicing also. सिर्फ learning से I don't mean कि ठीक है इसको आज जैसे learn करेंगे हम तो इसको learn कर लें. Physical and mental well-being, exercise, yoga, walking, sleeping and रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आधे टाइम तो हमारी जो बॉडीज़ हैं, हम बर्नआउट के सिम्टम्स झेल रहे होते हैं, हम इतने थके हुए होते हैं, तब भी हम रेस्ट नहीं करते हैं, एंड वी डू नॉट नो हाउ टू रेस्ट. सो ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग जो आपकी बॉडी, आपके माइंड पर तो अफेक्ट करते ही हैं, बट ऑल्सो दे अफेक्ट योर वे टू डू सर्टेन टास्क, योर वे टू मेंटेन डिसिप्लिन, योर वे टू क्रिएट हैबिट, एंड ऑल्सो योर वे टू मैनेज अदर people or other tasks. So these are really the ground, this is the groundwork for you to be able to become a better manager. Okay, अब हम आते हैं the art of focus पर. तो योगा को, योगा in general, from apart from its traditional definitions, yoga is also called a plan, a thoroughly planned flow activity. So योगा के जो steps laid down हैं योगा में, वो एक तरीके का एक सिस्टमैटिक वे है टू गेट यू इनटू अ फ्लो टू वर्क. तो योगा का अगर हम इनिशियल एम देखें, एक्चुअल एम देखें, तो दैट इज मेडिटेशन, दैट इज द अल्टीमेट मेडिटेशन, दैट इज समाधि, वेर यू आर वन विद योर ओन कॉन्शियसनेस. बट आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. आज हम योगा को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे कहाँ पर, टूवर्ड्स आर रियल प्रैक्टिकल लाइफ, टूवर्ड्स आर मैनेजमेंट. कि अगर मैं एज अ मैनेजर योगा के उन 8 स्टेप्स को देखना चाहता हूँ और अगर उन्हें भी फॉलो करता हूँ, कि ये फ्रेमवर्क फॉलो करूंगा मैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो हाउ इट कैन हेल्प मी. तो किस किस ने अष्टांग योग के बारे में सुना है? जस्ट जस्ट गिव मी यस और गिव अ शाउट आउट. किस किस ने 8 लिम्स ऑफ योगा या अष्टांग योगा के बारे में सुना है? आई वेट, ये बताना पड़ेगा किसी को, ये किस किस ने इसके बारे में सुना है. इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. In the meantime, I'm just fetching one document for you so that we'll have hello. No, sir. So Charan is saying he has not heard. Okay, thanks. Can you explain? Of course, I'm going to explain about it. Yes, we are going to talk about it. किस किसने अष्टांग योगा के बारे में नहीं सुना है या 8 लिम्स ऑफ योगा के बारे में नहीं सुना है? प्लीज, प्लीज गाइस, कोई और तो बताओ. आई हैवंट हर्ड अबाउट इट. थैंक यू चरण, थैंक यू आशु, बिकॉज दिस हेल्प्स मी इन गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ इट. एंड मतलब मैं, कई बार ऐसा होता है कि हमने सुना होता है, मान के चल रहे होते हैं कि ये पता होगा. सो थैंक्स फॉर टेलिंग मी. एनीवन एल्स, किस किस ने इसके बारे में नहीं सुना है? चलो, आई विल शेयर सम. आरव सिंह, आई डोंट नो सर. ओके, आरव, कॉल मी भुवनेश.
and I will share the screen now. आई थिंक आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होगे, राइट? अब किस किस ने ये नाम सुने हैं? यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, whatever you're seeing on the screen. Charan, have you heard of these names? Harshal, have you heard of these names? Arav, have you heard of these names or any of these names? And then we'll begin because now जो actually हमारा जो sweet spot है वो अब इधर से we'll start. ओके, ठीक है। तो एनीवे, आई एम अज्यूमिंग कि ये अभी हम में से किसी ने नहीं सुना है, विच इज टोटली ओके। अब हम क्या करेंगे? डोंट गो ऑन टू द इमेज, ऐसा कुछ सर्कल नहीं, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर इज, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब हो क्या रहा है कि योगा के ट्रेडिशनल योगा में योगा की जो डेफिनेशन है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि, विच इज द हाईएस्ट टेक्स्ट, हाईएस्ट अथॉरिटी इन योगा, जिसमें योगा के बारे में जो भी है वो सब बता रखा है कि योगा एक्चुअली क्या है। और उसका जो सेकंड सूत्र है वो बताता है कि योगा की डेफिनेशन क्या है। योगस चित्ता वृत्ति निरोधा। योगा इज सेसेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटीज और मेंटल मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड। तो बेसिकली दिमाग के अंदर कुछ भी जो भी अभी हमारे दिमाग में, चाहे वो थॉट हो, इमोशन हो, कोई भी किसी भी टाइप की एक्टिविटी जो भी है, जब वो कंप्लीटली सीज हो जाती है, जब वो कंप्लीटली हट जाती है, देन योगा इज अचीव्ड। तो उसका सेकंड सूत्र आता है, तो सो व्हाट, तो क्या करें हम? जब मेन तो योग अचीव हो जाता है तो क्या करें? बिकॉज तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उसका मतलब ये है कि जब आप वो वाली स्टेट अचीव करते हो, तब आप जो दृष्टा है, जो सीयर है, देन दे आर एबल टू सी देयर रियल इमेज, देयर रियल सेल्फ। जब आप योगा अटेन कर लेते हो, उसको अटेन करने के जो 8 स्टेप्स हैं, वो ये 8 स्टेप्स हैं, वो योगा के थ्रू, दैट इज व्हाट इट comes in that way. Now what we'll do is we'll apply this into our practical world as a manager जब हम बात कर रहे हैं, या as self management जब बात कर रहे हैं। मैं क्विकली यमा नियमा इनके बारे में बता देता हूँ। यमा जो होते हैं वो होते हैं मॉरल और एथिक्स, जैसे कि नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पॉसेसिवनेस। ये इसके अंदर 5 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नियमास होते हैं सेल्फ रिस्ट्रेंट, कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का रिस्ट्रेंट रखना है, डिसिप्लिन लाइफ। आसनास होते हैं जो आपने सुने हैं, राइट? पद्मासन सुना है, जो भी आसन सुने हैं जो योगा को जो टिपिकली हम जानते हैं। प्राणायाम में भी सबने सुना है, अनुलोम विलोम सुना है, नाड़ी शुद्धि सुना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वो होती हैं। सो योगा जो ट्रेडिशनल योगा है, व्हाट इट इज सेइंग इज कि अगर आपको जो हाईएस्ट गोल है वो अगर अचीव करना है, जो हमने योगा की डेफिनेशन बताई, अगर आपको वो वाला लेवल अचीव करना है, तो देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट यू गो ऑन, दैट यू डू। सो जैसे हम प्राणायाम तक पहुंचे, पहले आपको आसनास परफेक्ट करने होंगे, फिर आप यू गेट रेडी फॉर प्राणायामा। व्हेन नाउ योर बॉडी इज, व्हेन इट इज स्टेबल, नाउ यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर ब्रेथ। एंड दैट्स ट्रू, राइट? अगर आपकी बॉडी लेट्स से बैठी है और वो बॉडी ट्विच कर रही है, इधर कर रही है, तो द ब्रीदिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू गेट टू द नेक्स्ट लेयर्स ऑफ these steps, वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अटेन दैट। तो प्राणायाम में क्या आता है? प्रत्याहारा। प्रत्याहारा इज डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, बेसिकली इनवर्ड सेंसेस जो है, हमारे सारे सेंसेस को इनवर्ड करना। तो दिस इज अगेन अ प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग एवरीथिंग इनवर्ड्स एंड जस्ट कटिंग आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, कटिंग आउट एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। दैट इज एन important part. Now that is getting ready us for the meditation for concentration. Dharana is focus, concentration, effort, like forceful effort to get your mind on fixated on one object.
तो जयेश, यू हैड आस्क्ड वन क्वेश्चन कि हमारे दिमाग में, माइंड में क्या थॉट आना चाहिए जब ये चल रहा होता है। तो कॉन्सेंट, जब हम धारणा में होते हैं, और धारणा में वी ट्राई टू फोकस आवर माइंड, मतलब अगर थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, तो वी जस्ट लेट देम कम एंड लेट देम गो। माइंड की नेचर है कि इनिशियली इट इज सो एक्टिव दैट इट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ थॉट्स इन योर माइंड, and slowly and slowly, if you stop engaging with those thoughts, you stop, you know uh, टॉकिंग और स्टॉप स्वेइंग अवे विद दोज थॉट्स, तो होगा क्या कि धीरे धीरे थॉट्स की जो वैरायटी है और जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। उसके बाद हम आएंगे ध्यान वाले लेवल पे, कि हमने बार बार हमारे माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेट से बोलते हैं ना, ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करना, दिमाग में चल रहे हैं थॉट्स। थॉट्स जैसे ही आप ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, दिमाग में थॉट आया, अरे इसके बाद मुझे क्या करना है। फिर आपने नहीं नहीं नहीं, वापस मुझे ब्रेथ पर फोकस करना है, ब्रेथ पर फोकस कर रहे हो, फिर आज डिनर में क्या बना है, या कुछ और चीज़ आ रही। तो आप फोर्सफुल वे में बार बार कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो किसी एक ऑब्जेक्ट पे। वो ऑब्जेक्ट आपने पकड़ा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट आपका ब्रेथ हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट आपका इधर सेंटर पॉइंट हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट आपका कोई, अगेन इट कैन बी एनी एनी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी जस्ट एन एप्पल, इट कैन बी अ फ्लावर, बट यूजुअली वो एक आगे के एक डिफरेंट टाइप की मेडिटेशन होती है। बट यूजुअल मेडिटेशन, द बेस्ट वे टू डू इट इज थ्रू दी ब्रेथ, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आपकी चलती रहती है। दैट्स अ फिजिकल मूवमेंट दैट यू कैन ट्रैक। देन यू कम टू ध्यान। ध्यान इज अनब्रोकन फोकस, कि आप अभी तक तो बार बार आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे, फोकस करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन ध्यान इज दैट एक ऑब्जेक्ट आपने पकड़ लिया और कुछ आ ही नहीं रहा है आपके दिमाग में। लेट्स से आपने ब्रेथ पकड़ा हुआ है कंटिन्यूस, एंड योर complete concentration, your complete mind, all of your senses are just targeted towards that, and you will see the power of it. जब हम मंत्र जाप करते हैं ना, मंत्र जाप, जैसे कि ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, या ओम कर रहे हैं, या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वुड हैव सीन पीपल, सो दे आर इन दैट स्टेट फ्रॉम धारणा टू ध्यान, जो जाप हो रहा है, बिकॉज देयर complete concentration, their complete senses are on that one object, which is that mantra that they are chanting. And then it comes to samadhi. Samadhi is the ultimate meditation, and we'll not talk about it because it in itself is something, मतलब वो आगे का एक अलग ही topic है, around when you are closer to the consciousness, and this is the point when your mind does not even have that object. Mind is just, completely empty. You have attained that samadhi and you're one with consciousness. But this is hard to explain, and आज वो हमारा matter भी नहीं explain करने के लिए. Okay, so I'll just check अगर किसी के, yes, Barun is saying they have heard about pranayama. Okay, तो अभी हमने समझ लिया कि ये वाले जो steps थे वो किस तरीके से important steps थे for फॉर अटेनिंग द लेवल ऑफ मेडिटेशन। अब हम बात करेंगे कि यार मुझे मैनेजर, ये सेशन लाइव स्ट्रीम तो इसलिए था मैनेजर बनने के लिए कि बेटर मैनेजर बनना है, तो ये तो आप इधर योगी बनाने या मेडिटेटर बनाने की बात कर रहे हो, तो मैनेजर की बात कब आएगी? अब आएगी। व्हाट we'll do is we'll superimpose this concept on the way we actually attain the flow, we actually attain the management of different tasks, या डिफरेंट टाइप ऑफ, अपने को जब हमने कहा था ना टाइम मैनेजमेंट करना है, टास्क मैनेजमेंट करना है, किसी काम में जब घुस गए हो तो आप बहुत ऐसे घुसे हुए हो उसमें, रमे हुए हो उस काम में। ऐसा होता था ना बचपन में, वीडियो गेम खेल रहे हैं, 4 घंटे निकल गए और लग रहा है यार 5-10 मिनट ही हुए हैं। या कई बार यू आर सो एनग्रॉस्ड इन एक्टिविटी दैट यू डू नॉट रियलाइज ओ 2 hours पास्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लेवल ऑफ concentration, that level of flow. वो जब हम learn, ये है art of focus. This is what these 8 steps, when we extrapolate and superimpose on our own world, this is where the art of focus come. अब इसको वापस रिवाइज करते हैं, वापस जाते हैं कि यार ये है क्या, यमास। तो अब देखो, आप किसी काम पे बैठे हो, हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप किसी काम पे बैठे हो, एंड यू नो दैट it is very important for whether you are in your work, whether you are studying or anything, the first 2 layers are the neve, the foundation of the quality of focus that you are going to generate. What I'll say that again, what that means is कि अगर आपका mind disturbed है,
अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, आपका माइंड परेशान है या इम्प्योर है, या उसके अंदर खराब थॉट्स आ रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा इधर से उधर नाच रहा है, तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। हमें क्लियरली पता है, राइट? हम नहीं कर पाते हैं उस वाली चीज़, मतलब उस समय पर फोकस। तो इसलिए जो यमा है, यमा इज, अगर हम हमारे करंट मैनेजमेंट वाले टर्म में बात करें, तो यमा वुड बी दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ हैविंग मोरालिटी और हैविंग द प्योरिटी ऑफ माइंड। वॉट दैट मीन्स अगेन इज कि जब भी आप किसी भी काम को, चाहे अपने ऑफिस का काम है या आप किसी भी टाइप के काम को करने के लिए बढ़ रहे हो, मेक श्योर दैट देयर इज अ डिस्कनेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस एक्टिविटी दैट यू वर हैविंग। जो भी आप कर रहे थे, हो सकता है आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस किसी का झगड़ा हो गया हो, या अभी आप किस चीज़ से परेशान हो, या आपने अभी कोई मैसेज देखा एंड यू डिड नॉट लाइक इट, और यू लाइक इट, और यू टू इनग्रॉस्ड, यू जस्ट यू वांट, आपका दिमाग कहीं और हो, आप काम कहीं और करना चाह रहे हो। तो that is why this first step, yama, is very important. That is to have purity of the mind, and for that you will have to continuously work on it। कि मैं जब भी कोई काम कर रहा हूँ, मैं मॉर्निंग में उठने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद ऑफिस गया हूँ, तो वो एक मेरी लाइफ में एक ब्रेक है। एक ही लाइफ चल रही थी, अभी एक दूसरी लाइफ है। दिस ब्रेक जो है, मैं अपनी पर्सनल जो है वो प्रोफेशन में नहीं ला रहा हूँ, प्रोफेशन जो है वो पर्सनल में नहीं ला रहा हूँ। ये एक एग्जाम्पल है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिमिलर थिंग्स इन डिफरेंट डिफरेंट अदर एक्टिविटीज दैट, so having that morality, having that ethical conduct and purity of mind is important when you sit to focus on anything. Second is niyama, having a sense of something of a discipline, एक self discipline, कि अब मैं इधर बैठा हूँ तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड और रेड द बुक डीप वर्क। डीप वर्क वो एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। वो ये बात करता है कि यार आप काम जब करते हो बहुत डिस्ट्रैक्शन आते हैं, सो इट्स बेटर टू ब्लॉक योर टाइम्स इन स्पैन ऑफ 2 और 3 आवर्स, कि 2 घंटे आप लग के काम करोगे, 2 घंटे आप ये 8 स्टेप्स फॉलो करोगे। that will give you ultimate focus, and that will make you manage not only your time and your work very well, and it will prepare you for self management, जो फर्स्ट एस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यमा जो है प्योरिटी ऑफ माइंड, सेकेंड नियमा इज डिसिप्लिन, कि आपने एक सेल्फ रेस्ट्रेंट किया हुआ है। यू विल नॉट वांट, अगर हो भी रहा दिमाग शिफ्ट, तो आप अब जब इस काम में आ गए हो, द फर्स्ट स्टेप वुड हेल्प यू, यमा, दैट प्योरिटी ऑफ माइंड विल हेल्प यू इन गेटिंग टू द स्टेट ऑफ नियमा। थर्ड, आसना। तो क्या पोस्टर करना है, काम करते हुए कुर्सी पे बैठे हैं तो क्या हम आसन करने लग जाएं? नहीं, इसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं जिससे कि जब आप बैठे हो, आप लेट्स से, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल और स्टडी वर्क राइट नाउ, जब आप बैठे हो तो आपका पोस्चर करेक्ट है, आप कुर्सी पर बैठे हो, एक होता है बेड पर हंच पोज में बैठे हो, दैट विल नॉट गिव द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ फोकस, द आर्ट ऑफ फोकस जो हम लर्न करना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। इसलिए थर्ड स्टेप है विच टॉक्स अबाउट द पोस्चर, जो आपका पोस्चर है। सो इन दैट थर्ड, यू मेंटेन योर पोस्चर, इट इज स्ट्रांग, योर स्पाइन इज स्ट्रेट, योर लेग्स आर कंफर्टेबली ऑन द ग्राउंड, एंड यू आर रिलैक्स्ड, एंड योर चेस्ट इज ओपन, in a active, in a alert position। that is the third step जो हम extrapolate कर रहे हैं। फोर्थ इज प्राणायामा, ब्रीदिंग। जो आप ब्रीदिंग जिस टाइप की कर रहे हो, दैट डीप ब्रीदिंग इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो। आपने देखा होगा जब आप परेशान होते हो, एंग्री होते हो या एंशियस होते हो, तो आपकी जो ब्रीदिंग होती है बहुत फास्ट होती है। ब्रीदिंग इज दैट इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द माइंड। सो नाउ इफ यू वांट टू वर्क, यू वांट टू हैव दैट करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड, आप वो वाली स्टेट ऑफ माइंड रखना चाहते हो, इस वजह से आपका ब्रीदिंग पर फोकस होगा। आसना, आपका पोस्चर ठीक हो गया तो आपकी ब्रीदिंग को अपने आप स्पेस मिल जाएगी। चेस्ट विल हैव इन इटसेल्फ, इट विल हैव स्पेस टू बी एबल टू हैव डीप ब्रेथ्स। दिस इज योर फोर्थ स्टेप, प्रत्याहारा। प्रत्याहारा इज द फोर्थ वन विच इज डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। तो कई बार देखा ना हमने, हम काम करने के लिए क्या करते हैं, हेडफोन्स लगाते हैं। तो आप ये देख रहे हो, ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम, योगा साइंस जो ऑलरेडी बता चुकी है, हम उसको बहुत ही डिस्कनेक्टेड वे में काम करते हैं। हमें पता है कि यार दिमाग जिस दिन अच्छा, उस दिन अच्छा काम होता है। हमें पता है यार जिस दिन मैं अपने डेस्क पर बैठ के, चेयर पर बैठ के काम करता हूँ, उस दिन कुछ तो अच्छा काम होता है। जब मेरी ब्रीदिंग प्रॉपर है या मेरी स्लीप अच्छी हुई है, इस टाइप की चीज़ हुई है, तब मेरा काम अच्छा होता है। जब मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है तो मैं हेडफोन्स लगा देता हूँ, तब मेरा काम अच्छा होता है अ लॉट ऑफ द टाइम्स। सो प्रत्याहारा इज एक्चुअली, तो सेंस में तो है कि गेट योर सेंसेस इनवर्ड्स। हमारे वाले कॉन्टेक्स्ट में, मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट में, इट वुड मीन टू गेट
to cut out the world, cut out distractions and just have the focus on the work जो आप कर रहे हो. Okay, hi Sohail. And so yeah, this is what yeah, Sohail, I think we are there and you'll be able to catch it up. Thanks. अभी हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की. जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, अभी हम सेल्फ मैनेजमेंट के उन 8 स्टेप्स की बात कर रहे हैं जहां से हम आर्ट ऑफ जो फोकस है वो कैसे लर्न कर सकते हैं. और अगर वो हम 3-4 चीजें लर्न करते हैं तब हमारा सेल्फ मैनेजमेंट इंप्रूव होगा एंड दैट वुड मेक अस बेटर मैनेजर्स ऑफ आवर सेल्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर अस टू बी बेटर मैनेजर्स ऑफ पीपल या हमारी टीम. ओके, तो प्रत्याहारा आपने देखा होगा जब आप स्टूडेंट थे, बच्चे थे, तो कई बार नहीं होता तो हमारे सामने किताब है और हम इस तरीके से करके पढ़ते थे, बिल्कुल, कि मुझे डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं. वो सेल अपने आप आता था दिमाग का. ऐसा नहीं है कि किसी ने पढ़ाया समझाया था कि ओ ऐसे पढ़ा करो. खुद ही आता था कि नहीं मेरा दिमाग नहीं लग रहा, फोकस नहीं लग रहा, एंड वील डू दिस. सो दैट इज प्रत्याहार. सिक्स्थ इज धारणा, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन. कि अब आप जब आपने सारी चीजें कर ली हैं तब आप अपने काम में लग गए. वट एवर वर्क यूर डूइंग, you're maybe preparing a presentation or maybe you're doing a project, like you are working on something very active or you're coding or any kind of work that you're doing. Now you're completely immersed into it, you are trying to concentrate. Then the seventh comes unbroken focus. अनब्रोकन फोकस होता है ना, कई बार आप जब काम कर रहे हैं आपने अपने जो फोन है ये भी साइड कर दिया है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. तो भी ये वाली जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं कि नोटिफिकेशंस बंद कर दो, फोन बंद कर दो, फोन को या तो फ्लाइट मोड पे डाल दो या उसका वाईफाई कम कर दो. दीज वुड बी दोज प्रैक्टिसेस ऑफ प्रत्याहारा एंड धारणा, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा रहे हो. ध्यान है जो अनब्रोकन फोकस, वेयर नाउ यू इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट ऑफ वर्किंग वेरी इफेक्टिवली एंड योर टाइम वुड बी मैनेज्ड वेल, क्योंकि आप जिस तरीके से अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हो, आपका एनर्जी मैनेजमेंट भी हो रहा है और टाइम मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट सब कुछ हो रहा है इसमें. This has prepared you. So, and the fourth, the last, sorry, the eighth one is samadhi. Samadhi is the state of flow. अगर हम उस तरह एक्सट्रापोलेट करें, what I mean by state of flow here, स्टेट ऑफ फ्लो से मेरा मतलब है जो हम बात कर रहे थे कि आप वीडियो गेम जब खेलते थे और 4 घंटे निकल गए और पता भी नहीं चल रहा, लग रहा 5-10 मिनट हुए. ये वाला आजकल के काम में नहीं आता है. इस टाइप वाला जो अटेंशन है, इस टाइप का जो एक एक जो रिदम है वो आज के टाइम में नहीं आता है. एंड ये वाला अब हमें इंड्यूस करना पड़ेगा. हमने ओवर द ईयर्स हमारी आदतें खराब करी हैं. वी हैव ट्रेन्ड आवरसेल्फ टू बिकम मोर डिस्ट्रैक्टेड. वी विल हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ टू बिकम मोर attentive, more focused. So this is the state of flow. So अब हम आती चीजें लिखी थी मैंने ऊपर कि हमें आर्ट ऑफ फोकस जो है वो करेंगे हम. जस्ट अ मिनट, एक मिनट. इज देयर एन इंटरनेट इशू? कैन यू गाइज हियर मी? just someone please let me know. Okay, cool, thanks. हाँ, तो अभी हमने क्या बात की थी ऊपर. इफ यू गो इन टू द चैट यू विल सी कि वो 3 थिंग्स टू टेक केयर अबाउट योर सेल्फ मैनेजमेंट क्या थी. लर्न द आर्ट ऑफ फोकस, लर्न कॉन्टेम्पलेशन. तो हमने आर्ट ऑफ फोकस वाला जो पहला पार्ट है वो कवर कर लिया कि कैसे करेंगे. एंड वील ऑल्सो डू अ वेरी क्विक एक्टिविटी, द लाइव एक्टिविटी अराउंड दिस. ओके, गिव मी अ मिनट. आई विल जस्ट कनेक्ट दिस टू थोड़ा बैटरी का इशू था. ओके, अब हम सेकंड के बारे में बात करेंगे, लर्निंग कॉन्टेम्पलेशन. कॉन्टेम्पलेशन क्या है कि हमें वी शुड बी एबल टू डिसोसिएट आवरसेल्व्स. एक मिनट, आई विल स्टॉप शेयरिंग. या अभी जो हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि आपको अपने हर टास्क को लेकर के, एवरी टास्क दैट यू आर डूइंग, यू शुड हैव दैट सेपरेशन. कि आप जो उस टाइम के टास्क से जो भी आपका माइंड स्टेट था, यू नॉट ब्रिंगिंग इट इनटू द अदर टास्क. Okay, that's why you will have to learn to separate that. तो सेपरेट करने के बाद एक बार टास्क में घुस गए वो तो हमने सीख लिया द आर्ट ऑफ फोकस. बट उससे पहले वो सेपरेशन कैसे करेंगे, दैट विल कम फ्रॉम द लर्निंग कॉन्टेम्पलेशन और लर्निंग माइंडफुलनेस.
इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप 2 मिनट 5 मिनट मेडिटेशंस, 2 मिनट माइंडफुलनेस, 5 मिनट माइंडफुलनेस सीखो, खुद के लिए भी और टीम के लिए भी. इस वजह से it becomes important that you, apart from using this way to earn your focus in your work, you also have some time जब आप meditate कर रहे हो. थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऊपर वाले 2 पॉइंट्स को काट देगा. अगर आप एक्सरसाइज या योगा, इन दोनों में से कोई भी या दोनों ये नहीं कर रहे हो, तो योर माइंड जो हम बात कर रहे थे यमा नियमा, वो नहीं प्रिपेयर्ड होगा. माइंड वुड नॉट बी प्योर. You will not have discipline. Indiscipline in some aspect of life will come into the other aspects of your life, let's say profession or other works that you're doing. So इसी वजह से फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग बहुत ज़रूरी है. स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है. एबिलिटी, स्किल टू बी एबल टू रिलैक्स बहुत ज़रूरी है. हम बहुत, burnout is one word which is catching up these days, and most of us are burnt out, चाहे हम स्टूडेंट्स हों या चाहे हम वर्क में हों, क्योंकि हमने स्ट्रेस तो सारा ले लिया काम का. गुड स्ट्रेस भी लिया, बैड स्ट्रेस भी लिया, बट उस स्ट्रेस को रिलीव कैसे करना वो तो आता ही नहीं है, वो तो सीखा ही नहीं. इनपुट लेना सीख लिया, बट उसको आउटपुट कैसे देना है उसको, वो तो सीखा ही नहीं. दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. जो ये तो बेसिक है कि आप एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, ये अगर आपके स्केड्यूल में हैं, दिस विल बी हेल्पिंग यू. दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, या तरुण, दिस साउंड्स क्वाइट ऑब्वियस बट दैट इज रियली ट्रू. तो ओके, तो अभी हमने ये 3 चीज़ें कंप्लीट की हैं. हमारा सेल्फ मैनेजमेंट हुआ. विल कम टू द पीपल मैनेजमेंट, कि पीपल मैनेजमेंट में क्या करें हम, लाइक हाउ डज दिस हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डू small activity with everyone here, and in this we will just try to see practically जो भी हमने theory में देखा है, इसको थोड़ा सा practically देखते हैं. Okay, so just a minute. Okay everyone, ठीक है, 8 steps याद है हमें, and after this activity we'll like to see what we have done. Okay, everyone, अगर आप अपने बेड पे बैठे हैं तो जस्ट जो सिरहाना है उसका सपोर्ट ले लें, या बिना सिरहाने के बैठे. इफ यू सिटिंग ऑन योर सीट, देन fix your legs, push your legs on the floor and keep your spine straight. Okay, मीटिंग चल रही है जी. Fix your legs on the floor, keep your spine straight. Yeah, Harshal, I'm telling you कि आपका posture कैसे होगा. Okay, now keep your spine straight, roll your shoulder backwards, open your chest, and then relax. Gently close your eyes. Your back is also relaxed, but it is alert. It is not hunched. It is alert, it is straight. Keep your eyes closed. Keep a gentle smile on your face. Release the tension in between your eyebrows. Relax your forehead. Unclench your jaw. Release your jaw. Now bring your awareness, bring all your senses, whether they are of hearing, whether they are smelling. Cut yourself from the outside noise, outside sounds. Start making your senses inwards. Start focusing on your breath. Start focusing on your
sound of your heartbeat. If you can, posture remains intact. Calm down for some time. And you take two deep breaths. Inhale and exhale, let it go. This time, take inhale and exhale slowly. Another deep breath in and exhale. Experience this moment of calm and tranquility. If there is any thought that is coming in your mind, then let it come, let it go. From now on, your only focus should be on your breath. As it goes in, anchor your focus on your nostrils. From your nostrils, your breath goes in, you notice that, and breath goes out, you notice that. If there is any thought in your mind, do not engage with it, you just bring back your focus back to the breath. We'll stay in this focus for a few minutes. Gently prepare your mind, prepare your body to come out of this state. Bring your senses back to the outer world. If you're hearing noises, your eyes are closed. If you're hearing any voice, any noise, start hearing it. We'll take a deep breath in and exhale, let it go. And gently open your eyes. Okay. Okay, everyone.
So how did you feel? You can write it in the chat box. We have less time, so we'll just move on to the second thing. I'll just tell you what happened, what we did right now. Okay. But आप लोग chat box में लिख सकते हो how are you feeling. Sohail is saying I feel good already. Sohail, were you typing while you were meditating? Is it? Okay. So what we did right now was okay. Good, Adarsh. Thank you. So, thank you, Tarun. Yes, with the headphones, I think the voice would have really helped with this experience. Thank you. ओके सो अभी हमने क्या किया था हमने 8 स्टेप्स लर्न करे थे क्विकली देखो हमने किया क्या था हमने सबसे पहले क्या किया था हमारे दिमाग को लेकर के हम वी वर रीडिंग वी वर टॉकिंग अबाउट इट फॉर 40 मिनट्स सो एनीवे वी हैड दैट सेपरेशन वी हैड दैट माइंड का जो फोकस था वो इसी टाइप की बातों में था तो हम ये मान सकते थे कि माइंड की थोड़ी प्योरिटी लेवल बेटर था डिसिप्लिन था क्योंकि आप लोग 45 to 50 मिनट से इस स्ट्रीम पर थे तो आपने वो जो सेकंड स्टेप था नियमा वो भी कवर किया हुआ था थर्ड हमने क्या किया हमने हमारी स्पाइन स्ट्रेट की पैरों को उधर रखा आसना टेन किया फोर्थ हमने क्या किया वी स्टार्टेड टेकिंग डीप ब्रीथ्स इन ओके वी स्टार्टेड विद दैट प्राणायाम किया फिफ्थ हमने क्या किया प्रत्याहार किया जब हमने आंखें बंद करी जब हमने हमारे कान जो हैं इनसे वॉइसेस सुनना कम किया एंड वी स्टार्टेड फीलिंग अ हार्ट बीट और जस्ट आवर ब्रेथ दैट इज व्हाट प्रत्याहार दैट वी कट द डिस्ट्रैक्शन आउट ऑफ द वर्ल्ड देन द सिक्स स्टेप क्या था सिक्स स्टेप था धारणा धीरे धीरे हमने जो फोकस था वो हमारे ब्रेथ पर लेके आने लगे थॉट्स के साथ फोर्सफुल एंगेजमेंट हटाने लगे थॉट्स हटे उस पे आए ब्रेथ पे सेवेंथ क्या था वो था ध्यान ध्यान के स्टेट में हम एग्जैक्टली गए नहीं थे क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में नोबडी गेट्स इनटू ध्यान समाधि तो आगे की चीज है बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू व्हाट आई वांटेड टू मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड जो हमने पढ़ा था आर्ट ऑफ फोकस वो जो ये 2 मिनट और 5 मिनट के मैं बोल रहा था माइंडफुलनेस सेशंस जो आपको सीखने चाहिए फॉर बीइंग अ बेटर मैनेजर ऑफ पीपल this would help you in conducting mindful meetings revolutionary meetings जो brainstorming sessions आप अपने टीम में अगर करते हो उससे पहले अगर आप इस टाइप का 2 to 5 मिनट्स का आप सोचो अगर अपनी टीम को एक्सपीरियंस दे पा रहे हो पहले तो खुद को सीखना होगा राइट पहले खुद को ये वाली प्रैक्टिस है जो हमने ये 3 बातें की थी वो आपको करनी होंगी एंड ये भी सीखना होगा और जब आप सीखते हो सीख करके आप अपनी मीटिंग्स में जब इम्प्लीमेंट करने लगते हो जस्ट थिंक द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट द क्वालिटी ऑफ द माइंड स्टेट योर टीम पीपल विल हैव एंड यू विल ऑटोमेटिकली become a better manager not by some forceful action of कि मुझे अच्छा लिसनर बनना है ये बनना है ये तो सेल्फ अवेयरनेस जब आपके अंदर आएगी तो ये सारी ट्रेड्स अपने आप आ जाएंगी ये नेचर में तो अपने आप चेंज आ जाएगा बट व्हाट यू विल बी एबल टू इम्पैक्ट और इम्पार्ट टू योर टीम वुड बी वेरी वैल्यूएबल तो अब हम मूव होते हैं हमारे प्रैक्टिकल स्टेप्स टू टेक फॉर टीम मैनेजमेंट सेल्फ मैनेजमेंट हो गया राइट अब हम टीम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं मैं एक बार चैट बॉक्स में पीपल आर राइटिंग समथिंग आरव इज सेइंग आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश थैंक यू आरव गुड गुड फॉर यू एंड अभी जो नेक्स्ट आने वाला है इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इफ यू आर मैनेजर्स और इफ यू आर गोइंग टू बी मैनेजर्स बट स्टिल you should know this you should remember this Tarun is saying the voice really made a big impact thank you Tarun and Sanjay is saying the mind is more focused now good तो संजय माइंड फोकस्ड है तो अब इसको सुनते हैं ठीक है टीम मैनेजमेंट को लेकर के आपको बाकी जो चीजें आप करोगे अपने टास्क जिस तरीके से उनको दोगे प्रोजेक्ट बनाओगे ये सब तो यार आप वर्क पे सीखोगे अपने काम में सीखोगे ही सीखोगे मैं जो चाहता हूँ जो आप अपनी टीम के लिए करो वो ये 3 या 4 स्टेप्स हैं वो है एक तो लर्न these 2 minute और 5 minute माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो आप अपनी टीम के साथ इंप्लीमेंट करोगे अपनी मीटिंग से मैंने बोला था राइट कि सोचो आप खुद ही सोचो आपकी टीम में लेट से 4-5 लोग हैं वो कौन किस कॉन्टेक्स्ट के साथ आ रहा है कौन किस माइंड स्टेट के साथ आ रहा है आपने मॉर्निंग स्टैंड अप्स चालू किए 10-11 बजे के एंड कोई अभी सो के उठा होगा या अभी कोई लेट से उसकी थकान पूरी नहीं होगी या किसी का झगड़ा होगा या किसी का मन ही नहीं होगा उस मीटिंग में एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट सम काइंड ऑफ आउटपुट इन दैट मीटिंग अगर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग है या कुछ क्रूशियल मीटिंग है कैसे होगा वो एंड देन वी वुड थिंक कि यार लोग जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं लोगों के अंदर आइडियाज नहीं आ पा रहे हैं ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर पा रहे हैं
एंड व्हेन द मीटिंग इज ओवर द टीम विल फील, अरे यार ये मीटिंग में क्यों नहीं बोला, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आ रहा था, या दिस शुड हैव बीन डिस्कस एंड द टाइम इज गॉन. What you can do as managers is enable your team with this mindfulness aspect कि तुमने उनके दिमाग को जो भी था कमेंट्स है वो तुमने पहले ही कर दिया, तुमने उनके दिमाग को मोर फोकस्ड कर दिया, फ्रेश फील करा दिया, उनको एकदम से काफी अच्छा सा रिलैक्सिंग फील करा दिया, एंड द काइंड ऑफ आइडियाज दैट विल कम इनटू माइंड वुड बी माइंड ब्लोइंग एट दैट टाइम, एट द पॉइंट ऑफ टाइम. लर्न द आर्ट ऑफ माइंडफुल ब्रेक्स. इसका मतलब क्या है कि जब हम स्क्रीन पे बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं तो ये आपको खुद भी अडॉप्ट करना, अपनी टीम को भी ये सिखाना है. एक होता है ना आपकी एक खुद की टीम है, आप उसका एक कल्चर बना रहे हो, खुद एक माइंडफुल कल्चर बना रहे हो, दैट मेक्स यू अ माइंडफुल मैनेजर. मैं उसे बोलता हूँ योगी मैनेजर. कि योगी मैनेजर ये नहीं कि टीम से आसन करा रहे हैं या टीम के साथ बैठ करके योगा करा रहे हो. नॉट सेइंग दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू आर यूजिंग द रूट्स ऑफ योगा टू इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर टीम. सो आप माइंडफुल ब्रेक्स किस टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी हमारी ये मीटिंग चल रही है, अभी इसके बाद जिसने 1-1.5 घंटे से काम कर रहा है, यूजुअली क्या होता है, या तो कोई सुट्टा ब्रेक लेता है, या कोई चाय कॉफी का ब्रेक लेता है, या ब्रेक लेता है अपने फोन पे स्क्रॉल करता है. व्हाट वी कैन प्रमोट इज दैट इस टाइम पर यार रिलैक्स योर आइज, रिलैक्स. जो तुम रात में तुम्हें रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगी, स्लीप अच्छी नहीं हो पाएगी क्योंकि माइंड रेस कर रहा होगा, उसको अभी से प्रिपेयर करो. गिव योर माइंड, गिव योर आइज, give your overall body relaxation right during the day. What are those kind of relaxations? Stretches हो गया, कुछ टाइप के स्ट्रेचेस कर लिए. आज आई हैव टू लाइक आज का जो सेशन आई एम रनिंग दिस बिट फास्टर because I have to be somewhere, and right now I am in the office. So that's why. But otherwise हम ये वही प्रैक्टिस करते. वो क्या थे कि जैसे कि हमने stretching, even the act of simple stretching is really very helpful to release stress that is building up while working or while sitting. तो आपने माइंडफुल ब्रेक क्या हो सकता है कि अगर आप हंच्ड बैठे थे तो आपने ये कर लिया, आई की एक्सरसाइजेस कर लिए, आई को रिलैक्सेशन दे दिया इस तरीके से करके, या जस्ट एक कुछ समय का आंखें बंद करके यू आर जस्ट सिटिंग इन अ काम and you again doing this mindful activity. So first is learning and implementing this 2 to 5 minutes mindfulness session. The second one is learning mindful breaks. Now, what is the third? Third is setting a culture of starting brainstorming sessions after a mindful or concentrated session, जो मैंने अभी बात की थी कि कल्चर ही सेट कर दिया कि जो कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होगी, लेट से दिन की जो फर्स्ट मीटिंग होगी, या मे बी इवनिंग की जो बहुत ही लेथार्जिक और एंड की मीटिंग होती है, वी विल डू लाइक वी इधर वील स्टार्ट इट और वील एंड इट विद अ माइंडफुलनेस सेशन, जो हमने जिस टाइप का एक सेशन किया. Okay, this is something that will make you a better manager. Charan is saying, can you tell me how to do breathing while meditating? So Charan, what do you mean by meditating here? मतलब आप अगर मेडिटेट कर रहे हो, लेट से किसी ऑब्जेक्ट पर मेडिटेट कर रहे हो, तो आपकी जो ब्रीदिंग होगी ना, वो क्योंकि अब आपका ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस वो नहीं है, तो आपकी बॉडी ही उस ब्रीदिंग को अपने आप कंट्रोल करेगी. सो अगर आप मेडिटेट करते टाइम जब ब्रीथ कर रहे हो, अगर यू आर आस्किंग कि ब्रीदिंग पे अगर मेरा फोकस है तो मैं किस तरीके की ब्रीदिंग कर रहा हूँ, तो आपका चेस्ट ओपन है, योर पोस्चर इज फाइन, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, एक इसे बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग, कि आपने एक चेस्ट वाली ब्रीदिंग होती है शोल्डर ब्रीदिंग, व्हेन यू आर नॉट एबल टू टेक इन एयर एंड you try to do this, you don't have to do this. What you have to do, either you can do chest breathing where your chest takes in, it expands in this cavity and takes a lot of breathing, or you can do this is जो पेट, इसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं, योगी ब्रीदिंग भी बोलते हैं, कि आपका पेट बाहर जाता है, आपका डायफ्राम नीचे जाता है, योर चेस्ट नॉट ओनली एक्सपैंड्स इन दिस डायरेक्शन बट आल्सो एक्सपैंड्स इन दिस डायरेक्शन, टेक्स इन ब्रीदिंग. तो इन दोनों में से आप कोई भी ब्रीदिंग जो है वो यूज कर सकते हो. And we'll do a breathing practice session maybe next week or उसके next week, completely pranayam पर, कि हम किस टाइप की breathing हमारी होनी चाहिए while working and kind of mindful breaks that we should take. Okay. Uh, Improve your own self awareness to counter judgments and reactions. ये आपके self management का part है जो आप team management में apply करोगे, कि आपके खुद के जो रिस्पॉन्सेज है, रिएक्शन से टू समवंस वर्क और टू समवंस व्हाटएवर स्टेट, इट विल चेंज, क्योंकि आप अब उधर कंपैशन लेके आ रहे हो, ये चीजें खुद आएंगी, एम्पैथी खुद आएगी, कंपैशन खुद आएगा. सो दिस इज समथिंग
नॉन जजमेंट जो है वो खुद आएंगे. यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद पीपल ऑन अ ह्यूमन लेवल. आप खुद ही फील कर पा रहे होगे कि अगर आप ये रेगुलरली सेशंस कर रहे हो इन ऑन द वर्क एंड ऑल्सो यू आर डूइंग मेडिटेशन, लेट्स से 10 या 15 मिनट की आप एक लंबा टाइम स्ट्रेच आप खुद कर रहे हो, इट विल चेंज योर लाइफ फॉर गुड. यू विल बिकम अ बेटर मैनेजर इन दैट वे. एंड टीच देम दिस आर्ट ऑफ फोकस जो हमने आज बात करी है. वो आर्ट ऑफ फोकस अगर आप अपनी टीम को ग्रेजुअली सिखाओगे, समझाओगे, they will be uplifted in that way. They will become better workers. They will become better human beings. क्योंकि ना माइंडफुल टीम हो गई है, योगी टीम. योगी मैनेजर तो एक योगी टीम है ये. दैट वुड हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द काइंड ऑफ वर्क जो आप कंपनी के लिए करोगे, किसी के लिए करोगे. ओके, अब इससे होगा क्या ओवरऑल टीम के साथ अगर आप ये करते हो, तो ये तो आपके लिए हुआ कि आप बेटर मैनेजर हो. आप उनको किस तरीके से सारी चीज़ों से अफेक्ट कर पा रहे हो, वो वाली सारी चीज़ें हैं. आप उनका एक तो बर्नआउट जो है वो कंप्लीटली, बर्नआउट हम सब हो रहे हैं जो हमने बात की था, यू गिविंग देम अ वे आउट टू रिलैक्स. जो बर्नआउट के जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं और वो बहुत खतरनाक होते हैं, जो धीरे धीरे ओवर द टाइम वो क्यूमुलेट होते जाते हैं. वो जिस तरीके से आते हैं, देन यू रियलाइज कि ओह, दिस दिस शुडंट हैव, यू नो, आपका काम से मन छूटने लगता है. आई एम टॉकिंग अबाउट टीम एंड अबाउट यू ऑल्सो. जो बर्नआउट के इफेक्ट्स हैं, काम से मन छूटने लगता है, मोटिवेशन नहीं होती, सोचता जॉब ही छोड़ दूँ या मैं जॉब कर ही क्यों रहा हूँ. एक नेगेटिव एटीट्यूड आने लगता है लोगों के लिए, बॉस के लिए, अपने पीयर्स के लिए. और ये सब एक मेंटल स्टेट, जो माइंड सेट है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है. यू कैन प्रिवेंट योर टीम एंड योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग दैट इफ यू डू ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, इफ यू ब्रिंग दिस माइंडफुलनेस रूटीन इन योर वर्क एंड इन योर लाइफ. तो आप क्या कर रहे हो कि बर्नआउट होने ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप रिलैक्स कर ले रहे हो. आप उनको ओवर द डे रिलैक्स कर पा रहे हो. आपकी स्लीप क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी. एंड दिस एवरीथिंग इज इन दैट वे कनेक्टेड टू दैट. Okay. Any questions? So I can take. We have another 3-4 minutes. If you have any questions about this or anything, तो हम cover कर सकते हैं. मैंने किसी ने कोई question पूछा और मैंने वो cover ना किया हो, तो you can ask it again. And बाकी, if you like this stream, we are going to cover a lot of topics related to work and related to yoga and mindfulness, how they are connected and how they can help. So follow this channel and you'll be notified of the next kind of streams that will come. आगे की stream more and more practical होती जाएंगी. We'll spend more time on practice so that even what you practice here you are able to implement in your daily life. आज तो हमने 2-4 मिनट की करी, जब हम इसे 10 minutes की करेंगे तो it would be really helpful. So yeah, if anybody has any questions, please ask. I'm here for some time, and thank you for joining, everyone, for staying here for the complete stream. Really means a lot, and I hope I could add value to the 60-65 minutes that you spent today. Yeah, that's there. I know last 10-15 minutes I have rushed, but I'm sorry about it. I had to have to be somewhere, and that's why. Otherwise, what I'll do is see the second part of this stream, and I think it needs to be covered with more examples and more practical. So I'll do it again in some time. So follow करो. अगर सही लगता है, किसी को लगता है, तो ये स्ट्रीम अपलोड हो जाएगी. अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो, अपनी टीम में शेयर करो. अगर आप मैनेजर हो तो स्ट्रीम को वापस देखना. इसमें जो पॉइंट्स थे उनको अलग अलग टाइम पर जस्ट नोट डाउन दोस पॉइंट्स. एंड या, दिस इज okay. So Charan, Harshal saying thank you. It was very informative session. Thank you, Harshal. Thank you, everyone. Thank you, Charan, and thank you so much for being here. मैं एक quickly, बहुत ही quickly in 30 seconds I'll recap what we have done today. Better managers बनने के लिए सिर्फ दूसरों को मैनेज करना ही बेटर मैनेजर नहीं होता. दो एस्पेक्ट्स हैं, सेल्फ मैनेजमेंट एंड देन टीम मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्टेम्पलेशन और मेडिटेशन के जो
गुण हैं वो लेकर के आने होंगे। वो कैसे लेके आओगे? आप अगर अपने आर्ट ऑफ जो फोकस है उसे लर्न करोगे, हमने 8 स्टेप्स ऑफ योगा देखे थे वो कैसे करने हैं। कॉन्टेम्पलेशन लर्न करोगे, अगर आप मेडिटेशन खुद अपना एक खुद का एक रूटीन बनाओगे उसको करने को, और अपने कामों के बीच सेपरेशन करोगे कि जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो काम, ऑफिस का काम स्टार्ट करने से पहले कर रहा हूँ एक सेशन, तो ये आपके सेल्फ मैनेजमेंट में आएगा। और एक्सरसाइज, फिजिकल और मेंटल वेलबींग का ध्यान रखोगे। दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। देन यू ट्रांसलेट इट टू द टीम मैनेजमेंट। जब आपके अंदर खुद सेल्फ अवेयरनेस आ गई तो आपके अंदर वो सारे गुण आ गए हैं। आप जजमेंटल नहीं हो, आप बेटर लिसनर हो, आप एम्पैथेटिक हो, आप काम एंड कंपोज्ड हो, आप दूसरों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करोगे। एंड देन यू ब्रिंग इन दोज क्वालिटीज इन योर वर्क by giving your team those sessions। अपनी टीम से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालनी है, उनको माइंडफुलनेस सेशंस करवाओ। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले give them that space where they come out of from wherever they were coming in, and get them on the same level, and teach them, learn them। इन सबको ये वाली आप चीज़ें सिखाओ। ओवरऑल अपनी टीम का बर्नआउट जो है उसको कम करने की कोशिश करो, और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करो। सब लोग नहीं कर पाते हैं ये, सारे टीम मेंबर नहीं कर पाते हैं। सो जस्ट ट्राई टू बी दैट वन mentor in their life who is able to give them relaxation। They'll be able to live a good life, and they'll be able to do good work, what you want। Okay, guys, thank you so much. Arav, thank you. The session was very positive and informative. Thank you. I'll end the stream now। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और कल की भी स्ट्रीम है, कल की स्ट्रीम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम बात करना, इनफैक्ट कल की स्ट्रीम, अगर आज किसी को लगा है हमने जल्दी खत्म किया, तो कल की स्ट्रीम इनफैक्ट इज काइंड ऑफ अ फॉलो अप। इट इज अबाउट द ओनली 3 postures दैट यू नीड टू डू टू चेंज योर माइंडसेट। आपकी बॉडी आपका माइंडसेट चेंज कर सकती है। अगर माइंड आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है तो ये रिलेशनशिप रिवर्स भी है। कल वाले सेशन में आना, हम पोस्चर की बात करेंगे और ब्रीदिंग भी करेंगे और एक लाइफ प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू संजय, बाय। आई एम एंडिंग द स्ट्रीम नाउ।